Hi friends, welcome to Kadam Study Center. Today we are going to start lecture number 3 of chapter number 1 Introduction to Data Structure and Algorithm Analysis. Okay, हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, आपको भी पता है. ओके, डेटा स्ट्रक्चर का सेकंड ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस सेमेस्टर 3 सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर. ओके, इंट्रो आपको पेज पे दिख रहा है. सो ये लास्ट लेक्चर है, इसमें हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. इससे पहले के लेक्चर में लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ये हमने देखा था. ओके, ये थे टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. ओके, आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ. टाइप्स ऑफ डीएस यानी टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. फर्स्ट था लीनियर. ओके, लीनियर. सेकंड था नॉन लीनियर. ओके, इसमें इसके बारे में हमने डिटेल पढ़ा था. आज हमें उसका डिफरेंस देखना है एंड आगे के कुछ टॉपिक लेने हैं. ओके, सो फर्स्ट है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. देखो, in linear data structure data elements are arranged in a linear order where each and every elements are attached to its previous and next adjacent. Okay, एलिमेंट्स कैसे अरेंज किए जाते हैं? सिक्वेंशियली यानी लीनियर ऑर्डर में, और हर एक एलिमेंट प्रीवियस एंड नेक्स्ट एलिमेंट से एडजेसेंट होता है. इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डेटा एलिमेंट्स आर अटैच इन हायरार्चिकली मैनर. हायरार्चिकली मतलब रैंडम मैनर या फिर कंफ्यूजिंग मैनर. ओके, इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सिंगल लेवल इज इन्वॉल्व. इसमें सिंगल लेवल होती है, वेयर एज इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मल्टीपल लेवल्स आर इन्वॉल्व. इट इम्प्लीमेंटेशन इज इजी. ओके, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन इज इजी in comparison of non-linear data structure, while implementation is complex in comparison of linear data structure. In linear data structure data elements can be traversed in a single run only. Okay, linear में हम one by one traverse करते हैं. suppose आपका array है 1 2 3 4 5 और हमें लीनियरली सर्च करना है, तो हमें वन बाय वन ट्रैवर्स करना पड़ेगा. वैसे नॉन लीनियर में डेटा एलिमेंट्स कांट बी ट्रैवर्स इन अ सिंगल रन. सिंगल रन में ट्रैवर्स नहीं होती. ओके, in linear data structure memory not utilized in an efficient way, when in non-linear data structure memory is utilized in efficient way. For example, linear data structure examples are array, stack, queue, linked list, etc., while its example are trees and graphs. Okay, trees and graphs are non-linear data structure example. Applications of linear data structure are mainly in application software development. Applications of non-linear data structure are in artificial intelligence and image processing. Okay, तो हमने डिफरेंस के कितने पॉइंट देखे? 1 2 3 4 5 6. ओके, 6 एंड 7. देखो 7 पॉइंट से कम आपको 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. बराबर, 4 मार्क्स के लिए आया तो 7 के 7 पॉइंट्स लिख दो, 3 के लिए आया तो 5 to 6 पॉइंट्स आप लिख दो. सिंपल है, कुछ इतना हार्ड है क्या? मैंने अभी पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं किए क्योंकि हमने थ्योरी ऑलरेडी पढ़ के रखी है. बस अभी हमें डिफरेंस देखना था. चलो आगे बढ़ते. अभी हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम. एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम मींस व्हाट? लेट्स सी. It is determination of the amount of time and space resource required to execute it. Suppose we have a problem and how much amount of time and space required and how much resources are required to execute the program or to solve a program. So we take help of algorithm. Algorithm is defined as a step-by-step procedure that provides a solution to a given problem. Okay, so algorithm means what? Algorithm is a step-by-step procedure that provides a solution to given problem. Okay, we had already seen the algorithm in first semester, first year BSc Computer Science semester 1 subject problem solving using C programming, chapter number 1 problem solving aspects, topic number 1 problems, and topic number 2 are algorithms. Okay, so we had already studied about algorithm. So what is algorithm? Input set of rules obtain the expected output from the given input. Okay, इसमें क्या रूल्स लगने वाले? तो हम यहाँ पे लेंगे इनपुट देंगे एंड हमें जो रूल्स देने के बाद हमें जो प्रोसीजर होगी उससे हमें आउटपुट मिलेगा. ओके, ये डायग्राम और ये दो लाइन आपको अगर क्वेश्चन आया एक्सप्लेन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम तो आपको लिख देने. सिंपली यहाँ से उठा के पेपर में लिख दो. कुछ हार्ड है क्या? नहीं, इजीएस्ट वे. ओके, देन द मेन टॉपिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. इन सिंपल लैंग्वेज अगर आपको बताओ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूशन ऑफ एल्गोरिदम. कितना टाइम लगता है? सिंपल लैंग्वेज में देखो, time complexity of an algorithm can be defined as the total amount of time required by an algorithm to complete its execution. यही तो मैंने आपको अभी बताया. इसमें क्या था? The total time taken by the algorithm or program is calculated using sum of the time taken by each executable statement in the algorithm or program. तो टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हर एक
एग्जीक्यूटेबल स्टेप के लिए कितना टाइम लगा उसकी सम करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल इंटीजर सम a कॉमा b रिटर्न a प्लस b इन द अबो कोड इट रिक्वायर्स 1 यूनिट ऑफ टाइम. इससे कितना यूनिट ऑफ टाइम लगा? 1 यूनिट, क्योंकि एक ही स्टेप थी. द वैल्यू दैट मीन्स टोटली इट टेक 2 यूनिट्स ऑफ टाइम टू कंप्लीट इट एग्जीक्यूशन. ओके, और रिटर्न वैल्यू के यहाँ पे एक स्टेप और यहाँ पे एक स्टेप. ओके, तो रिटर्न वैल्यू के साथ साथ 2 यूनिट्स का टाइम लगा. सिंपल. देन टॉपिक है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सो व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? लाइक दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. लगा कोई अंदाज लगाओ आपके हिसाब से. जैसे कि टाइम रिक्वायर्ड होता है वैसे स्पेस तो लगेगी ना एल्गोरिदम रन करने के लिए या फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए. देखो, space complexity of an algorithm represented by the amount of memory space required by the algorithm in its life cycle. algorithm की लाइफ साइकिल परफॉर्म करने के लिए या फिर प्रोसीजर जो होती है उसे परफॉर्म करने के लिए कितनी स्पेस लगती है. हाउ मच स्पेस इज रिक्वायर्ड. इट इज कॉल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, for any algorithm is required for the following purpose. Okay, memory is required for the following purpose. क्या पर्पज है चलो देखते हैं. मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए. मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करने के लिए, वेरिएबल स्टोर करने के लिए एंड फ्यू अदर थिंग्स. ओके, सो लाइक दैट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज एन सिंपल टॉपिक. सो अगर क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आंसर लिख देना. कुछ हार्ड है क्या? अभी तो समझाया. चलो एग्जांपल देखो. इन द अबो कोड इट रिक्वायर्स 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी टू स्टोर वेरिएबल x एंड 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी इज यूज्ड टू रिटर्न वैल्यू. दैट मींस टोटली 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी इज रिक्वायर्ड. ओके, 4 बाइट्स की मेमोरी लगेगी. देन लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज असिम्प्टोटिक नोटेशन. असिम्प्टोटिक नोटेशंस. asymptotic notations are mathematical tools. ये एक mathematical tool है to describe how the running time or space of an algorithm increases as the input size grow. जैसे जैसे हम इनपुट ज्यादा देंगे. सपोज एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं. यहाँ पे क्या है? शुगर है. ओके, शुगर है. कितने? 10 सैक्स शुगर है. 10 सैक्स शुगर है और मुझे यहाँ पे उसको रखनी है. यहाँ पे एक टेबल है. सपोज यहाँ पे मुझे शुगर रखनी है और इसके बीच का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर. सपोज 10 सैक्स शुगर के लिए मैंने आदमी बुलाए 5. हर एक आदमी कितनी शुगर ले जाएगा? 2 सैक 1 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए. और रैंडमली 1 किलोमीटर डिस्टेंस चलने के लिए कितने मिनट्स लगते हैं? 6 to 7 मिनट्स या फिर 8 मिनट्स. ओके, तो 1 किलोमीटर जाने के लिए एक आदमी कितनी सैक लेके जाएगा? एक बार में एक ही सैक. 5 आदमी 2 राउंड मारेंगे तब हमारे 10 सैक्स यहाँ पे पहुंच जाएंगे. ओके, तो इसके लिए टाइम लगा. सपोज हम कर लेते हैं 1 आवर ऑफ टाइम रिक्वायर्ड या फिर 30 मिनट्स ऑफ टाइम रिक्वायर्ड एज यूजुअल. अभी मेरे पास 100 सैक्स शुगर है. 100 सैक्स. मैंने क्या किया? सॉरी, एसएससी के सैक्स. इनपुट को क्या किया? इनपुट बढ़ा दिया. यहाँ पे इनपुट कितना था? 10 सैक्स था ओनली. और मैंने यहाँ पे क्या किया? इनपुट को बढ़ा दिया. इनपुट इंक्रीज हुआ तो टाइम भी इंक्रीज होगा ना. टाइम तो लगेगा ना यहाँ तक जाने के लिए. 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है. आदमी हमारे पास 5 ही है तो टाइम तो लगेगा ना. 100 सैक्स कर दिए तो जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा तो रनिंग टाइम और स्पेस भी बढ़ेगी ना. मुझे यहाँ पे टेबल भी बड़ा करना पड़ेगा. यहाँ पे छोटा टेबल था, इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके 10 सैक्स बैठ जाएंगे तो मुझे यहाँ पे टेबल भी बढ़ाना पड़ा और टाइम भी बढ़ाना पड़ा. तो यही बताता है असिम्प्टोटिक नोटेशन एक मैथमेटिकल टूल है जो यूज करते हैं. रनिंग टाइम और स्पेस ऑफ एन अल्गोरिदम इंक्रीजेस एज द इनपुट साइज ग्रो. जैसे जैसे इनपुट बढ़ता है वैसे रनिंग टाइम और साइज भी बढ़ते जाती है अल्गोरिदम के लिए. वो डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? असिम्प्टोटिक नोटेशन इन सिंपल लैंग्वेज. इफ द इनपुट बिकम्स वेरी लार्ज, अगर आपका इनपुट बड़ा हुआ, हाउ फास्ट विल द प्रोग्राम बिकम स्लोअर. इनपुट बढ़ाया तो टाइम बढ़ेगा. टाइम बढ़ेगा तो काम स्लो होगा. बराबर ना. इनपुट बढ़ेगा तो प्रोग्राम भी स्लो एग्जीक्यूट होगा ना. अगर वेरी लार्ज प्रोग्राम, सपोज आप सिंपल एग्जाम करो, 100 MB की हम फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, टाइम कम लगेगा. 1 GB की फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, टाइम ज्यादा लगेगा. तो हमारा एग्जीक्यूशन तो स्लो हो रहा है ना. फाइल धीरे धीरे डाउनलोड हो रही है इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है ना. तो यहाँ पे वही लिखा है. इफ द इनपुट बिकम्स वेरी लार्ज, अगर इनपुट ज्यादा लगा तो कितनी जल्दी प्रोग्राम हमारा स्लो हो जाएगा. ओके,
यही डिस्क्राइब करने के लिए हम असिम्प्टोटिक नोटेशन यूज करते हैं। अभी हमें असिम्प्टोटिक नोटेशन क्यों यूज करने हैं? देखो, टू कंपेयर algorithm based on performance, to ignore unimportant details like exact execution time और हार्डवेयर। क्या इग्नोर करना है? अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स जैसे कि एग्जीक्यूशन टाइम और हार्डवेयर। टू फोकस ओनली ऑन ग्रोथ रेट, सिर्फ हमें ग्रोथ रेट पे, हमें काम से मतलब है, ओके, ग्रोथ रेट पे फोकस करना है। थ्री मेन टाइप्स ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशन, हमारे पास थ्री टाइप्स है। फर्स्ट है बिग ओ नोटेशन, जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं, इसे हम वर्स्ट केस कहते हैं। मीनिंग देखो, हाउ मच टाइम द अल्गोरिदम विल टेक इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो में अल्गोरिदम कितना टाइम ले रहा है। फॉर एग्जांपल, सर्चिंग इन एन अनसॉर्टेड लिस्ट, अनसॉर्टेड लिस्ट हमें सर्च करनी है, ओके, ये वर्स्ट केस है। वर्स्ट मतलब क्या? बेकार चीज है। अनसॉर्टेड लिस्ट है, उसे लगाने में टाइम ज्यादा जाएगा, दिमाग ज्यादा जाएगा, वर्स्ट केस है ना। एग्जाम्पल नोटेशन, ओ एन टाइम ग्रोज लिनियरली एज द इनपुट इंक्रीज, जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टाइम भी बढ़ेगा। सेकंड है ओमेगा नोटेशन, ओके, ओमेगा से डिनोट किया जाता है, इसे हम बेस्ट केस कहते हैं। हाउ फास्ट द अल्गोरिदम कैन रन इन द बेस्ट केस सिनेरियो। एग्जाम्पल, फर्स्ट आइटम इन द लिस्ट इज द वन यू आर लुकिंग फॉर। आपको सपोज आप अटेंडेंस लगाने जा रहे हो, 1 से 100 हमारे पास क्या है? रोल नंबर है, ओके, आपका फर्स्ट डे है कॉलेज के, कॉलेज का आपका फर्स्ट डे है, आपको पता नहीं है आपका रोल नंबर क्या है, और आपका नाम आप ढूंढ रहे हो, आपका नाम आपको फर्स्ट नंबर पे मिल गया है, एबीसी आपका नाम है, आपको फर्स्ट इसमें ही मिल गया। तो ये बेस्ट केस हुआ ना, आपके लिए बेस्ट सिनेरियो क्रिएट हुआ कि मुझे मेरा नाम फर्स्ट पे मिल गया, आपने साइन कर दी और आप निकल गए, सिंपल। एग्जाम्पल नोटेशन, ओमेगा 1 कांस्टेंट टाइम, वेरी फास्ट, टाइम कांस्टेंट है, फास्ट काम होता है। देन थर्ड है हमारे पास थीटा नोटेशन, थीटा से डिनोट करते हैं एवरेज और एग्जैक्ट केस, ये एवरेज है, ओके, वर्स्ट और बेस्ट के मिडल में। मीनिंग, shows the exact growth rate when the best and worst case are the same, जब बेस्ट एंड वर्स्ट केस सेम हुए तो हम उसे एवरेज और एग्जैक्ट केस कह सकते हैं। एग्जांपल, बैलेंस परफॉर्मेंस अक्रॉस इनपुट। एग्जांपल नोटेशन देखो, थीटा एन टाइम ग्रोज लिनियरली, नो सरप्राइज, इसमें कोई सरप्राइज नहीं होता, एक तो स्लो भी नहीं होता, फास्ट भी नहीं होता, एवरेजली चलता है, ओके। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ। एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, ओके, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ, ओके। आप एक मिनट रुको बस, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड ओनली, मुझे एक बार आपको सिलेबस दिखाना है। देखो, हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े। हमने नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, इंट्रोडक्शन देखा, डेटा डेटा स्ट्रक्चर क्या है, हमने डेफिनेशंस देखे, डेटा की देखी, इंफॉर्मेशन की देखी, डेटा टाइप देखे, डेटा ऑब्जेक्ट, एडीटी यानी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पढ़ा, और डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। देन हमने टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर देखी, कौन कौन से थे, लिनियर एंड नॉन लिनियर। देन हमने टॉपिक देखा एल्गोरिथम एनालिसिस। देन हमने टॉपिक देखा स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड हमने बेस्ट वर्स्ट एवरेज केस एनालिसिस, असिम्प्टोटिक नोटेशन, बिग ओ, ओमेगा, थीटा, एंड प्रॉब्लम्स ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन। ओके, प्रॉब्लम्स पूछे नहीं जाते, मैं प्रॉब्लम्स नहीं ले रहा, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। सो दैट्स इट, अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं किस सब्जेक्ट का लेक्चर लेना है, ओके, वो मैं डिसाइड करूंगा खुद। एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसका हमने एक भी लेक्चर लिया नहीं है, ओके। सो नोट्स आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप यहाँ से भी क्यूआर कोड को स्कैन करके, आपको स्क्रीन पे जो कोड दिख रहा है सेंटर में टेलीग्राम चैनल नाम करके, उससे स्कैन करके आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो, ओके। पीडीएफ फॉर्म में नोट्स वहां पे अवेलेबल होते हैं, ओके। इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर लेना, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, ओके। सो if you like this video, please like, share and subscribe to our channel, and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye, मिलते हैं अगले लेक्चर में।